Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, greeting each one of you in a very precious name of our Lord Jesus. एक बार फिर से आप सबों को मसीह यीशु ख्रिस्ट के नाम में अभिवादन करने चाहता हूँ, ग्रीटिंग्स करने चाहती हूँ। I believe all of you are having a good time. अभी मैं विश्वास करती हूँ आप सबों के साथ अच्छा समय रहा होगा। And God is so good. परमेश्वर अच्छे हैं। And throughout the weeks, God has been with us. सप्ताह भर परमेश्वर हम लोगों के साथ रहा। We have been so blessed. हम लोग बहुत आशीषित हो गए। And again, God given us this opportunities so that we could come together to worship Him. और फिर से एक बार परमेश्वर ने आप और मुझे यह मौका दिया है ताकि हम लोग एकत्रित होते हुए परमेश्वर का आराधना कर सकें। And the whole week we are busy in our own work. पूरा सप्ताह हम लोग अपना कार्य में व्यस्तता में रहे। But God has made this day लेकिन परमेश्वर ने आज का दिन आप और मेरे लिए बनाया so that for those who believe in Him, they can rest for one day and they can come together जो to worship Him. परमेश्वर में विश्वास करते हैं उन लोग एक दिन विश्राम करते हुए उसकी आराधना कर सकते हैं। So in this morning we will go to meditate the Word of God. आज के इस सुबह का समय है, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से मनन करें। Because we know His words can nourish our spiritual life. और हम लोग जानते हैं उसका वचन हम लोग की आत्मिकता की ओर हम लोग का जीवन को लेके जाता है। And without His words we cannot receive any strength. और उसका वचन के अलावा हम लोग अपने आत्मिक जीवन में शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। So okay, let us go together with me from the Gospel of Matthew chapter 7 verse 24 to 27. आइए मेरी साथ मती सुसमाचार मती की पुस्तक 7 अध्याय का उस And 24 to 27. 24 से लेके 27 तक पढ़ें। This is a very familiar passage. ये हम लोग का जाना पहचाना अध्याय है। So, but again we will go through. फिर से एक बार हम Ponder लोग पढ़ने upon it. चाहते हैं और इसका ऊपर ध्यान करने चाहते हैं। So first I will read in English and later in Hindi. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. हालेलुया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्यों के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्यों के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ वर्षा बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। आमीन। हालेलुया। In this passage, इस पद में Jesus was talking about the two types of the builders. यीशु दो प्रकार का घर बनाने वाला मनुष्यों के बारे में बता रहे हैं। The first is the wise builder, एक बुद्धिमान मनुष्य and the second the foolish builder. और दूसरा मूर्ख मनुष्य। So now we should understand who is the wise builder and the foolish builder. हम लोग समझ सकते हैं कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। So now we will get the answer from the verse 24 to 26. और हम लोग को उत्तर मिलता है 24 से 26 तक पढ़ने से। Again we will repeat and read again that verse. आइए हम लोग एक साथ हम लोग पढ़ें और उसको फिर दोहराते हुए हम लोग पढ़ें। और यही है बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य। The wise man is that person who
hear the words of God and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. बुद्धिमान मनुष्य वही है जो परमेश्वर का मनुष्यों को सुनता, परमेश्वर के वचन को सुनता है, अपना हृदय में रखता है और वही परमेश्वर का वचन का मुताबिक अपना जीवन को आगे बढ़ाता है, अर्थात उस पर अपना आत्मिक घर को बनाता है. And the foolish builder is the person who hear the word of God but doesn't practice. लेकिन मूर्ख इंसान वह है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है लेकिन उसमें प्रैक्टिस नहीं करता. So these two verses of the 24th and 26, ये 24 और 26 पद, the answer are very clear. हमारा उत्तर वहाँ प्रश्न है. Means the wise men hear the word of God और बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुन लेता and apply it to his life. और वो अपना जीवन में लागू कर लेता है. But the foolish builder, I mean the foolish man, लेकिन मूर्ख मनुष्य he hear the word of God, वो परमेश्वर के वचन को तो सुनता but he did not apply into his life. लेकिन वो अपना जीवन में उसको लागू नहीं कर सकता. So the builder, लेकिन यहाँ बनाने वाला मनुष्य, I mean the builder himself choose the foundations where he will build his life. और बनाने वाला मनुष्य अपने ही से नींव को चुनना है, अर्थात जगह को चुनना है, नींव को डालना है, कहाँ वो चुनेगा या बनाएगा और नींव डालेगा. Before building anything, कोई भी जगह में कोई भी चीज बनाने का आगे they should choose the foundations. और उसका नींव को चुन लेते हैं लोग, नींव बनाने का जगह. So foundation is very important. इसलिए नींव जहाँ रखते हैं उस जगह बहुत महत्वपूर्ण होता है. And here in this passage, Jesus was talking about the builders. और इस अध्याय में यीशु बनाने वाला, घर बनाने वाला मनुष्य के बारे में बोल रहा है. And he said the wise man built his house on the rock. बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर चट्टानों के ऊपर बनाया बोलता, which have the solid ground. और जहाँ अच्छा भूमि रहता है. But let us go and see what is the characteristic of the rock. और इस चट्टान का चरित्र क्या होता है, गुण क्या होता है, उसका बारे में हम लोग देखें. The characteristic of a rock is very hard. जो उसका गुण यह होता है चट्टान का कि वो बहुत कड़ा होता है, unmovable, वो इधर उधर नहीं हिलता, not easily breakable, और साधारणतः वो टूटेगा नहीं, and not easily shaken. और वो ऐसा हवा हुंडरी से उसको हिलाया नहीं जाता. I mean, so on and so forth. और ऐसा ही होता है चट्टान का I mean, गुण. it is stable. वो एक जगह स्थिरता रहता है. So a rock cannot easily to move from one place to another place. चट्टान आसानी से एक जगह से दूसरा जगह मूव कर नहीं सकते हैं. Means today will be in the marketplace, आज बाजार का एरिया में है तो, and tomorrow it will be on the in the jungle side. और कल जंगल में. But it's not like that. ऐसा नहीं होता है चट्टान. It will remain in one एक place. जगह में स्थिरता रहता है चट्टान. So the wise man built his house on the rock, mean he built in the strong foundations. और बुद्धिमान इंसान ने चट्टान के ऊपर अपना घर बनाया, इसका मतलब है कि Strong foundations. वो एकदम शक्तिशाली नींव में बनाया है. So that nobody can shake or nobody can remove easily. उसको कोई भी हिला नहीं सकता या कोई भी वहाँ से हटा नहीं सकता. And but a foolish man, लेकिन मूर्ख मनुष्य he built his house on the sand, the Bible says. बालू में बनाया उसका अपना घर, बोल के बाइबल बताती है. Sand have no solid ground और बालू अच्छा भूमि नहीं है that can hold it. एक साथ में ताकि पकड़ सके. It doesn't. And if anything is happening, the sands it can be carried away. और कोई भी चीज होता है बालू उसको लेके चल सकता है. So the same as situations comes to both houses here. और यहाँ दोनों परिस्थिति दोनों घर के ऊपर में आता ही है. Here the Bible talk about the rains, the winds, the streams, mean the floods comes to यहाँ those houses. आदि पानी हवा का बात यहाँ करता है वचन.
दोनों घर के ऊपर में। But the house that had been built on the rock और वो हाउस जो चट्टानों के ऊपर में बनाया हुआ था, means it does not fall away. वो गिरता नहीं। But the house that built on the sand, लेकिन जो बालू पर बनाया था, it fell with a great crash and destructions. वो जब आंधियां उस पर टकराई तो वो गिरकर सत्यानाश हो गया बोलता। You know that the wise man built his or her life on Christ Jesus. यहाँ मालूम है आपको, बुद्धिमान मनुष्य अपना जीवन यीशु में बनाता है। And they build their life on his teaching. वो अपना परमेश्वर का वचन का शिक्षा की ओर अपना जीवन को गाड़ता है, बनाता है। But the foolish man built his life लेकिन मूर्ख इंसान अपना जीवन को बनाता है on everything else which have no foundation. और जिसका भी उसका सही नींव नहीं होता उसी के ऊपर वो बना लेता है। So my dear believers in Christ Jesus, मेरा प्रिय भाई बहनों, just to hear the word of God, हम लोग जब परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, it is not enough. ये इतना में हो गया नहीं है। So we need to, when we hear, we need to apply and practice. जब हम लोग सुनते हैं, into practice. जो हम लोग वचन को सुनते हैं, सुनना है और सुनने के बाद वो वचन के अनुसार अपना जीवन को परिवर्तन करना है मेरे प्रिय। Because Jesus in this Gospel of Matthew chapter 7, सुसमाचार 7वां अध्याय में यीशु कहते हैं, he says, "Who hear these words of mine and put them into practice." 24. और 24 पद में बोलता कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह बुद्धिमान मनुष्यों के समान ठहरेगा बोलता। Means we have to practice what we hear, what we learn from the word of God. परमेश्वर के वचन से जो हम लोग सुने और पढ़े उसके अनुसार हम लोग को उसको प्रैक्टिस करना होगा। So that words it will change and takes place to our life. ताकि वही वचन आप और मेरे जीवन में जगह ले लेता, आप और मेरा जीवन को परिवर्तन करता है। हालेलुया। Because if we do not obey what we hear, यदि हम लोग जो भी हम लोग सुने उसको नहीं मानेंगे, पालन नहीं करेंगे तो so it is foolish. हम लोग मूर्ख ठहरते हैं। We just waste our times to hear the word of God. हम लोग परमेश्वर का वचन सुनने में समय व्यर्थता We are बिता not देते हैं। given a chance to that the word of God will walk to our life. हम लोग अपना जीवन में परमेश्वर का वह वचन को कार्य करने नहीं देते हैं। That's why in James chapter 1 verse 22, 22nd to 23rd. और याकूब का पुस्तक Chapter 1. एक अध्याय याकूब Verse 22nd to 23. 22 और 23 पद क्या कहती है? It says, "Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who look at his face in a mirror." याकूब एक अध्याय 22 और 23। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह मनुष्य उस मनुष्यों के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। Here he says, यहाँ ऐसा बोलता है, when you listen the word जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो but do not do what it says, और लेकिन वचन जो कहता है वो नहीं करेंगे तो we deceive ourselves. You deceive yourself. और आप अर्थात हम जो वचन सुनते हैं हम अपने आप को धोखा देते हैं। We are not deceive anybody, हम लोग दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं, but we deceive ourselves. हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं मेरे प्रिय। So the word of God says, what you hear, you do it. परमेश्वर का वचन यह कहता जो भी तुमने सुने हो तुम करो। Do what it says. और तू वचन जो कहता है उसको पालन करो। Practice what you hear and learn. उसको प्रैक्टिस करते रहो जो कुछ तुम लोग ने सुने हो। Obey his words and his teaching. उसका शिक्षा और उसका वचन जो भी कहता है उसको आज्ञा पालन करो। If we do not do like that, और यदि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो it is like a man who look himself into the mirror. और आईना वो व्यक्ति का समान है जो अपने आप को आईना में देख लेता है।
But after some time, he will और कुछ समय के forget his बाद face. वो भूल जाता है कि उसका आईना में क्या दिखा था, उसका फेस में क्या है। Every day we used to go and stand in front of the mirror प्रत्येक दिन हम लोग आईना के आगे जाते हैं और खड़े रख के देखते हैं, before going out or staying at home. और घर में बैठे या बाहर जाए कोई भी समय हो। But right after we leave the mirror, we forget everything. लेकिन जैसे ही हम लोग आईना को छोड़ देते हैं, आईना से बाहर निकलते हैं और भूल जाते हैं मेरा अनुहार में क्या है। So it's like the person who do not practice what hears from the word of God. और वो परमेश्वर का वचन में जो वचन सिखाया है उसमें सुन लेता नहीं करता, तो वो व्यक्ति के समान ही होता है। It's like that a person who stand on the वही mirror व्यक्ति समान जो आईना में देखता है अपने आप को भूल जाता है। and listening one ears and another ears. एक वचन एक कान से सुन लेता है वचन और दूसरा कान से उड़ा देता है। So when we hear the word, और जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं but do not do what you hear, और लेकिन उसको पालन नहीं करते हैं जो or सुने what the word उसमें says, जो वचन कहता है, you deserve yourself. आप अपने आप को धोखा देते हो। So it is very important us to do what we hear. हम लोग को यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी हम लोग ने सुने उसको पालन कर लें, Apply it to your उसको life. अपना जीवन में लागू करें Bring it into practice. और उसको प्रैक्टिस में ले आएं। Because faith without it is dead. और कार्य विश्वास कार्य के बिना मरा समान है। Jeremiah chapter 2 verse 26 says, और याकूब की पुस्तक 2 का 26 पद बोलता है, your deed shows that you obey what you hear. आपका 26 पद हम पढ़ रहे हैं, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे विश्वास भी कर्म के बिना मरा हुआ है। So, how you prove that you obey his words? तो मेरे प्रियो, आप कैसे अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को पालन कर रहे हैं? When you show it into action. आप जब अपना जीवन में एक्शन में लेंगे, उसको दिखाएंगे। Action reveals that you obey and practice what you hear. और आपका जीवन से जो कार्य करते हैं वो एक्शन आपका वचन जो आपने सुने उसी को दिखा लेता है। Many time it used to happening. और बहुत बार ऐसा हो जाता है, you have been become a Christians for long years. आप मसीह तो बने होंगे बहुत दिन आगे से, बहुत दिन से, But you did not see any changes that take place in your life. लेकिन in your family. आपका जीवन में कोई भी परिवर्तन हुआ आप देख नहीं पा रहे होंगे। The reason is इसका कारण यही है because you did not obey what you hear. और आपने वह आज्ञा पालन नहीं किए जो भी आपने सुन लिए हैं। So that's the problem. ये समस्या मेरे प्रियो। So now, if you want to see the changes यदि आप परिवर्तन को देखने चाहते हैं तो in your life, आपका जीवन में first you have to obey the word of God. पहला आप परमेश्वर के वचन को पालन करना होगा And you build your life on Christ Jesus. और आपका जीवन मसीह यीशु में बनाना होगा। Because in 1 Corinthians chapter 3 verse 11 says, पहला कुरिन्थी 3 का 11 पद ऐसा कहता है, it says, for no other foundations can anyone lay than that which is laid, which is Jesus Christ. Hallelujah. 11 का 3 का 11. 3 का 11 की 11 का 3। 1 Corinthians chapter 3 verse 11. पहला कुरिन्थी का पुस्तक 3 अध्याय 11 पद ऐसा कहता है, हम पढ़ के सुना रहे हैं, सुनिएगा। यहाँ बोलता, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरा नींव नहीं डाल सकता। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is our rock. यीशु हमारा चट्टान है, He is our firm foundations वो हमारा नींव है that we can build a life upon. जिसमें हम लोग का जीवन को हम लोग बना सकते हैं। Obedience to Christ आज्ञा यीशु का या मसीह यीशु का आज्ञा पालन करना is the only sure foundations वही एक अच्छा नींव रखने का for building your life and my आप और मेरा जीवन को नींव डालना या उसमें बनाने का एक अच्छा भूमि है या फाउंडेशन है। So we need to build a life on Jesus Christ because He is the foundation. सो हम लोग को अपना जीवन यीशु मसीह में बनाना होगा, जो हमारे जीवन में अच्छा न्यू वही होंगे। And
Here with in this passage again, लेकिन यही मत्ती का 7 अध्याय में in the फिर verse 25, और 25वां पद में he says that the rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundations on the rock. और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। And 27, और 27वां पद, the rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। The same situations came to both houses. दोनों घरों के ऊपर एक ही परिस्थितियां आई मेरे प्रियो। The house that built on the rock जो चट्टानों के ऊपर में बनाया हुआ था and the house that built on the और sand. जो बालू के ऊपर बनाया गया था, The same situations. दोनों में एक ही परिस्थिति Says the थी। rain came down, the stream rose, बारिश the आई, winds आंधियां blew, चली, हवा आया, but only one thing's different. लेकिन एक चीज अलग थी। The house on the rocks remained, चट्टान ने बनाया वो घर नहीं गिरा, एक ही जगह में रहा। but the house on the sand has been लेकिन बालू के ऊपर में बनाया घर गिर गया, सत्यानाश हो गया, बल्कि वचन कहता है। You know, in this passage, the rain, the floods, the rivers, the streams, the wind, ये अध्याय में मेघ बरसना, बाढ़ें आना, आंधियां चलना इत्यादि are the trials of life. हमारा जीवन में आने वाले तमाम समस्याएं हैं। You cannot escape from trials and problems. आपका जीवन में समस्याएं और संघर्षों को आप नकार नहीं सकते हैं। We should not misunderstood. हम लोग इसमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करना होगा। Being a Christian, it doesn't mean मसीह बनने का मतलब यह नहीं है the life will go smoothly without any एकदम problem. आसान से समस्या बिना ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है, But there will be more problems. लेकिन वहाँ बहुत सारी समस्याएं The आएगी। persecutions you have to face. वहाँ हम लोग का सतावन हम लोग को सहना पड़ता है। And many times people they used to ask the questions, और बहुत बार लोग हम लोग को सवालें करेगी, especially for the newly believers. विशेष करके नया विश्वासी लोग। And they used to say, we believe in the Lord Jesus Christ. हम लोग यीशु के ऊपर में विश्वास तो करते हैं, And we prayed. हम लोग प्रार्थना भी We करते have हैं, faith. हम लोग के पास विश्वास है, And we are going to church हम लोग regularly. मंडली भी रेगुलर जाते हैं। But this problem, it seems, it does not go away from our life. हमारा जीवन से ये समस्या भाग नहीं जाता, हट नहीं सकता। And means one problem after another एक problem. समस्या खत्म होता दूसरा समस्या उठ जाती। All these things will come to life. ये सारा समस्या सारा चीज आप और मेरे जीवन होता है। Even you build your life on Jesus, यदि आप अपना जीवन यीशु जगह में आप खड़ा करेंगे तो भी trials will come. समस्याएं आएगी। That is the testing. ये आपका विश्वास को टेस्ट कर रहा है, विश्वास को परीक्षा कर रहा है प्रभु। So the trials comes to design and purify our faith. और समस्याएं संघर्ष आपका जीवन में इसलिए आता है ताकि हम लोग को अच्छा साइज दे सके, हमारा विश्वास को हमें बना सके, शुद्ध बना सके विश्वास। God tested our faiths to reveal the true quality of our life. परमेश्वर आप और मेरा विश्वास को जांच करता है कि उसमें सच्चाई में रह सके। Until and unless the trials comes into life, you cannot recognize the quality of the building or of the builder. और जब तक संघर्ष या समस्या आपका जीवन में ना आए मसीह जीवन में, तब तक आप विश्वास में हूँ बोल के अपने आप को देखा नहीं सकते हैं। Because when you look from outside, और जब आप बाहर देखते हैं, there is no difference. अलग नहीं है। Even though you build your life on Jesus, आप हो सके यीशु में अपना जीवन बनाए, or you build on something else, या आप विश्वास दूसरा में कहीं बना लिए, it is only the trials that can test you. और ये खाली वही परीक्षा ही आपको टेस्ट कर सकता है। You know, in 1 Corinthians, आप जानते हैं पहला कुरिन्थियों का पुस्तक chapter 3, 3 अध्याय verse 12 and 15. और 12 और 15 पद। पहला Let कुरिन्थी us read 12 together.
पहला कुरिन्थियों की पुस्तक chapter 3, 3 अध्याय 12 और 15। uh, ओके 12 to 15. He says, if anyone builds on these foundations using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their works will be shown for what it is, because the day will bring it to light. It will reveal with fire, and the fire will test the quality of each person's work. If what has been built survives, the builders will receive a reward. If it is burned up, the builders will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. हालेलुया। पहला कुरिन्थी की पुस्तक 3 अध्याय 12 से 15 तक। यदि कोई उस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्द रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। The fire will test the quality of a person's work. और लोगों का कार्य को आग के द्वारा परीक्षण किया जाएगा, And it will reveal the true quality of a person. और वो जो अच्छा व्यक्ति का कार्य वो स्थिर रहता है, The true quality of the person's work. और वो अच्छा व्यक्ति का कार्य If it is remain, वो स्थिर रहता, so they will receive the reward. और उसको रिवॉर्ड मिलेगा, But उपहार if it मिलेगा। burns up, यदि जल जाएगा, so the builder will suffer a great उसको loss. जो बनाया उसको एकदम संघर्ष करना पड़ेगा। So if the person's work और वो व्यक्ति का कार्य कैसा है, is burns up, वो जल जाने वाला है, so it is useless everything what he has done. वो काम बिना का है। जो भी उसने किया उसको काम नहीं है तो Everything जल is जाएगा। useless. और जो भी उसने किया वो खत्म हो जाता है। Waste पूछो of नहीं। time, उसका टाइम भी बर्बाद हो गया, waste his money, पैसा बर्बाद हो गया, waste his energy, उसका जो एनर्जी सामर्थ्य शक्ति वो भी खत्म, his hard work is उसका कड़ा परिश्रम useless. खत्म, सब Nothing. कुछ नहीं रहेगा मेरे प्रिय। So everything, whatever he built, it is सब useless. चीज जो भी उसने बनाया वो खत्म हो जाएगा। So when you build your life, build it wisely. इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप बनाएंगे अपना जीवन को अच्छा से बुद्धिमानी के साथ बनाइए। When you go to church, जब आप कलीसिया में जाएंगे, when you pray, जब आप प्रार्थना करेंगे, when you preach, जब आप प्रचार करेंगे, how you build that things. आप कैसे बना रहे हैं अपना उस शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को। Otherwise, you are going to church, it is you नहीं just तो wasting आप time. कलीसिया जाना आपका समय बर्बादी करना है। You are praying, you just wasting your time. आपका प्रार्थना करना भी समय बर्बादी करना है। You are giving your offerings, your tithes. आपका it will be दान और दशंश देना भी useless व्यर्थता में जाता। if you did not build in यदि the proper आप foundations. अच्छा भूमि में, अच्छा जमीन में अपना नींव को नहीं डालेंगे तो So first you have to choose the right foundations. पहला आप अच्छा नींव को चुनना होगा। Because in that First Corinthians, इस कारण पहला कुरिन्थी का पुस्तक in chapter 3 verse 11 says 3:11 बताता है that no other foundations can anyone lays यीशु को छोड़कर और कोई भी फाउंडेशन नहीं है। यीशु than that मसीह which is laid, which is Jesus Christ. और वही यीशु मसीह जो दूसरी नींव नहीं डाल सकती है। So build your life on Christ मेरे Jesus. प्रियो, आप अपना जीवन यीशु मसीह में बनाइए। Build your life on His words. यीशु मसीह का वचन में, परमेश्वर का वचन में बनाइए। You cannot say, Lord, we love you, but we do not love His words. आप यह बोल नहीं सकते, प्रभु हम लोग प्यार तो आपको करते हैं लेकिन आपका वचन के अनुसार चल नहीं सकते हैं। We say, Lord, we will give you all our life, but we cannot obey and apply His words to our life. आप यह बोल नहीं सकते, प्रभु हमारा जीवन तो तेरे पास में है लेकिन तेरा वचन के अनुसार हम जीवन को बिता नहीं सकते, ऐसा बोल नहीं सकते हैं। We have to go to live according to His words. हम लोग परमेश्वर का वचन के मुताबिक अपना जीवन को जीना होगा। Just to have the knowledge of His word, it is not enough. परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना ये काफी नहीं है।
but we needs to apply it. हम लोग को इसको जीवन में लागू करना होगा। Live according to what it उसका says, वचन जो भी कहता है उसके अनुसार चलना होगा, so that we will receive rewards from God. ताकि परमेश्वर से हम लोग वो उपहार मुकुट को प्राप्त करेंगे। Whatever we are doing, God, He will say, "You are well done." और जो भी हम लोग करते हैं परमेश्वर कहेगा उसमें आप God- अच्छे सेवक हो। God will bless धन्यवाद। us this verse. और परमेश्वर की वचन से आशीष So करें। let us be the wise builder हम लोग ज्ञानी बुद्धिमानी बनाने वाला बने, who build a life on the rock, which is our Lord Jesus Christ, जो यीशु मसीह में हम लोग अपना घर को बनाते हैं, अपना जीवन को बनाते हैं, not on other things in और this चीज में world. नहीं, इस संसार का चीज में। So God will bless you. परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। Amen. आमेन। मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें आज के वचन के लिए। परमेश्वर का दासी के द्वारा हम लोग का जीवन में वचन को सुने। ये वचन का अनुसार आज संसार भर जहां से भी वचन को सुन रहे हैं, आप अपना जीवन मसीह बनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका वचन के अनुसार जीवन को पालन करना होगा। प्रभु आप सबों को आशीष करें। यदि आप मसीह बन रहे हैं, कलीसिया जाते हैं और टाइट ऑफरिंग दे रहे हैं, तो अभी का वचन आपके साथ बोला होगा। यदि आपका जीवन में परिवर्तन नहीं है, तो कुछ तो कमजोरी है। आइए अपना न्यू को परमेश्वर का वचन में बनाएं और अपना जीवन उसी में डालें, ताकि जल के खत्म न हो, सोना का समान चोखा निकले। आइए हम लोग धन्यवाद दें। पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। तूने आज हमारे साथ बोला ये वचन संसार भर में, ऑनलाइन में जहां से भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, जैसे ऑफलाइन के लोग आशीषित बने वैसे ऑनलाइन के लोग भी सारे लोग आशीषित बन सकें, ताकि तेरी महिमा हर एक लोगों के जीवन से हो। महिमा तेरी हो, यीशु का नाम में, आमेन।